हद होती है, क्या एक्सटेंट होती है, सारी चीज़ें लैंडमार्क केस टीएमएपाई के केस में बेटा डिसाइड करी गई थी। इसके बाद एक और केस आया बेटा पीए इनामदार का केस, उसमें और थोड़ा रिफाइन करा। And at least you should know what has been held by the Honorable Supreme Court and Honorable High Courts in the country. इससे जो आपका लीगल नॉलेज है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू PW क्लैट। मैं हूँ आपकी लोमिन टेरेस्रा and I welcome all of you to this amazing platform wherein we are covering some landmark cases जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। So you should know the background of the case and at least you should know what has been held by the Honorable Supreme Court and Honorable High Courts in the country. तो आपके लिए बेटा ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे जो आपका लीगल नॉलेज है वो डेफिनेटली बढ़ेगा और आप अपनी तरफ से भी एफर्ट ज़रूर किया करिए, इंटरनेट का बेटर यूज़ किया करिए और ऐसे केसेस ज़रूर देखा करिए जहाँ पे आपकी लीगल नॉलेज क्या हो, एक्सपैंड हो। So in this case we are going to talk about minorities. Now what are minorities? What is a majority population? What is a minority population? Everything you know, it has been given in the constitution. The most important document in our country, the most talked about document in our country. तो minorities का जिक्र बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, मोरओवर फंडामेंटल राइट्स में किया गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो कितने प्रकार की माइनॉरिटीज, द टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर 2, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज। एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी which is minority by reason of the language they speak, by reason of the language they are speaking, and because of that they are separate from the majority population, we will consider them as linguistic minorities. And when the minorities are minority by the reason of the religion they are professing, practicing, then they will be known as religious minorities. Both of these minorities have been recognized in the constitution and they have also been given fundamental rights under the constitution under the article 29 and article 30. So we are going to talk about these minorities, and in the case of TMAPI Foundation versus State of Karnataka 2002, the Supreme Court has held various guidelines wherein whether the state, whether the government, the सरकार, क्या सरकार ऐसे minority institutions को, ऐसे institutions जिनको minority, चाहे वो minority religious हो, चाहे वो minority linguistic हो, उनके द्वारा अगर establish किया गया है या administer किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट उसको चेक कर सकती है, उसमें इंटरफियर कर सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है और क्या एक्सटेंट होगा गवर्नमेंट का कंट्रोल करने के लिए ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिनको माइनॉरिटीज के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया या एडमिनिस्टर किया गया है। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, यू हैव टू गो एंड चेक द रीसेंट AMU verdict, the Aligarh Muslim University verdict, wherein you will definitely get to know many points, and after this case if you will go and refer to that case, definitely you will be able to understand that case also very easily. Do go and check it. So we are going to talk about TMAPI's case. TMAPI का केस जो है बेटा 2003 का जजमेंट है जिसको 11 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया। लार्जेस्ट बेंच जो है बेटा केशवानंद भारती केस में जो है वो बैठी थी और 13 जजेस बेंच थी वो, और आप इस जजमेंट पे आप देख सकते हैं 11 जजेस की बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो राइट है माइनॉरिटीज का इस्टेब्लिश करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस के अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 रेड विद आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आर्टिकल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे रह गई। If I ask you beta, what is a minority? Who or how can you determine that a particular community or a particular population is in minority,
or is in majority. How would you decide it? You have to decide according to the numbers. So when you are deciding according to the numbers, you will take India as a unit or a particular state as a unit. You have to answer that in the comment section. ठीक है? तो बेटा इसमें हुआ क्या, जो majority थी यहाँ पे, majority bench, उनका ओपिनियन जो है वो डिलीवर किया गया. 6 जजेस की बेंच ने यहाँ पे अपना majority ओपिनियन जो है बेटा वो दिया. और क्या कहा यहाँ पे, held that only the state, majority opinion delivered by 6 judges held only the state बेटा यहाँ पे होगा सरकार को मान के चलेगा, गवर्नमेंट. only the state can determine the status of a religious or a linguistic minority. मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन कर सकती है उनका स्टेटस. एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज who have been put on at par in आर्टिकल 30. बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हमने आर्टिकल 30 में रिकॉग्नाइज किया, उनको भी कंसिडर किया जाएगा. कैसे बेटा, ये हमें पता चला TMAPI के केस में कि हम स्टेट वाइज डिटरमाइन करेंगे. हम माइनॉरिटीज को कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा, स्टेट वाइज उसको हम डिटरमाइन करेंगे. इसी केस में कहा गया हाउएवर द राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, यानी कि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने की राइट है, कैन नॉट बी सच एज टू ओवरराइड द नेशनल इंटरेस्ट और प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम फ्रेमिंग रेगुलेशंस. यानी कि आपको राइट हमने दे दी है, माइनॉरिटीज को राइट तो मिल गई है, लेकिन ये इतनी अनफेटर्ड राइट नहीं है कि माइनॉरिटीज जो चाहे वो करें. अगर स्टेट चाहे, सरकार चाहे तो रेगुलेशंस भी ला सकती है, रूल्स भी ला सकती है, सिलेबस भी फिक्स कर सकती है, क्राइटेरिया भी डाल सकती है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. या अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किया गया है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट में सही नहीं है, तो उसको रोका जा सकता है. It must necessarily apply to all educational institutions, whether run by the majority or minority. कहा ये रेगुलेशन सबके लिए है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी ने बनाया हो या मेजॉरिटी ने बनाया हो. Such a limitation must necessarily be read into Article 30. जो सरकार के रेगुलेशंस हैं, it cannot destroy the minority character. यानी कि सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, बहुत बाद में फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करेंगे. और अगर अब लग रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में कुछ गलत है, तब सरकार का रोल आता है बेटा. राइट सबसे पहले ऊपर होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, तो सरकार उसके रूल्स और रेगुलेशंस लाके उसको लिमिट कर सकती है. चलिए आगे आ जाइए बेटा. यहाँ पे इस चार्ट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो माइट बी करेंटली आपके लिए थोड़े हाई लेवल हो जाएं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से रेगुलेट किया जाता है कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्री में. क्या हद होती है, क्या एक्सटेंट होती है, सारी चीज़ें लैंडमार्क केस और TMAPI के केस में बेटा डिसाइड करी गई थी. और बहुत सारे केसेस के बाद ये केस आया था. इसके बाद एक और केस आया बेटा, PA इनामदार का केस, उसमें और थोड़ा रिफाइन करा. तो हर केस के बाद हम थोड़ा रिफाइनमेंट करते हैं, जो पहले कहा उसको ओवररूल करते हैं, जो बाद में कहा उसको सेट कर देते हैं एज लॉ. So the changes happen according to the society, according to the needs of the people. चलिए इसमें क्या कहा, जब हम माइनॉरिटीज को डिटरमाइन करेंगे तो हम स्टेट वाइज डिटरमाइन करेंगे. कहा कि हम माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की इजाजत दे रहे हैं ऑफ देयर चॉइस. इसका मतलब वो चाहे तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं. ये एब्सोल्यूट राइट नहीं, यानी कि स्टेट उसको रेगुलेट करेगा. कई बार ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सरकार से एड लेते हैं. तो अगर कोई एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकता है जो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट आपको नॉन माइनॉरिटी ग्रुप से भी लोगों को लेना. जैसे फॉर एग्जांपल आपके मुस्लिम्स के द्वारा बनाया गया कोई इंस्टीट्यूशन है, तो आप मुस्लिम्स को तो लेंगे ही, एडमिट करेंगे ही, बट आप नॉन मुस्लिम्स को, बाकी जितने अदर रिलीजियस कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, उनको भी आप लेंगे. अगर कोई एडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट भी रखना यहाँ पे इजाज़त है, और ये रख सकते हैं. जैसे आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करके आप उस कॉलेज में एडमिशन पाते हैं. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उनका खुद का प्रोसीजर हो सकता है, एडमिशन का तरीका हो सकता है,
स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बट वो जो भी प्रोसीजर होगा बेटा वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो जो सरकार से पैसा ले रहा है और एक जो सरकार से बिना पैसे लिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जो सरकार से पैसा नहीं ले रहा है उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। एडमिनिस्टर करने का राइट हम दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको रेगुलेट करेंगे, स्टेट आपको रेगुलेट करेगा। जो भी फीस चार्ज करी जा रही है कोई अनएडेड इंस्टीट्यूशन की, उसको जो है हम रेगुलेट नहीं कर सकते, सरकार ये नहीं देख सकती क्या आप फीस चार्ज कर रहे हो, बट कैपिटेशन फी चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस इतना जान लो। एडेड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हैव द सेम ऑटोनॉमी। जो पैसा स्टेट से ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, तो आपको फ्री हैंड नहीं है, सरकार आपको रेगुलेट करेगी आपके मैनेजमेंट को। और वाइल गिविंग एड टू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब कंडीशंस रिजर्वेशन पॉलिसी कि नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी आपको लेना होगा और मेरिट भी डिटरमाइन करी जाएगी अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट कराया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर स्टेट पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो जो एंट्रेंस टेस्ट कर रहा है। तो मेनी थिंग्स हैव बीन लेड डाउन और आज भी अगर आप एएमयू वाला वर्डिक्ट देखोगे उसमें भी बहुत कुछ कहा गया है। तो इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो, इसके बैकड्रॉप पे जाके केसेस देखो, इंटरेस्ट लोगे तभी मज़ा आएगा बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सब कुछ आपके सामने है, ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप तैयारी करते हो और किस तरह से आप वो रैंक पाते हो जिसको आप ड्रीम कर रहे हो। ऑन दिस नोट आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।